Assalamu alaikum and good evening, everyone. I hope you all keeping very well. It is a great honor for PIPFA team to welcome you all to this webinar. Now we start with this. Now we start this webinar with the Tilawat Quran Pak. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Now I welcome Mr. Junaid, convener PIPFA Islamabad Branch Committee for this webinar. Over to you, sir. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Thank you, Ali. On behalf of PIPFA, I welcome you all to this session on financial crime and anti-money laundering, counter-financing the terrorism, and anti-proliferation financing. We'll be covering a brief overview of the international paradigm as well as our local measures and local regulations as well. But prior to that, let me begin with my brief introduction. And I would appreciate if you people can turn on your cameras. That will enable me to rightly know to whom I'm talking to, because this seems that I'm at the moment talking to this computer. So if it's possible, Ali. So my name is Junaid Younas Ghori. I'm presently heading the anti-money laundering function at Zarit Rakyati Bank. I'm Senior Vice President here. I've done Chartered Accountancy from ICAW UK. I'm a Chartered Certified Accountant as well. I'm a member of PIPFA. I'm also a Chartered Banker. I've also done a Master's in Finance with specialization in investment banking from the University of New South Wales, Australia. In addition to that, I've attended a couple of national certifications from the UNODC, from West Virginia University, as well as from the University of Pennsylvania. I'm also having nearly 20 years of experience, over 20 years experience by now in the banking and financial sector. And I've worked with the institutions like MCB Bank, Saudi Park Bank, SECP, Al Baraka Banking Group, Australian government, and presently I'm working with the Zarit Rakyati Bank. Ali, can you hear me? Hello? Yes, sir. अली मैं साइमल्टेनियसली चाह रहा हूँ ये दोनों चीजें मेरे सामने आ जाएं, स्क्रीन भी और मेरी स्लाइड्स भी, मुझे गाइड कीजिएगा। सर एक साथ नहीं पॉसिबल है, जस्ट आपको स्लाइड्स ही साथ करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज फिर मैं सिर्फ वो स्लाइड्स ही देख पाऊंगा, लोगों को नहीं देख पाऊंगा। चलो, थैंक यू, नो वरीज। ओके,
एजेंडा जी हमारा, वी हैव टू सी के व्हाट इज द AML CFT and the menace, the scale of the problem as well. What are the international policy instruments and what are the different global bodies, those who are responsible for caring about this entire regime of the anti-money laundering. क्या effectiveness of compliance program AML का जो national risk assessment framework है, we will just be taking just an overview, because keeping in view this very scant time, we are unlikely to cover everything in detail. So let's begin with the very प्रॉब्लम के एंटी मनी या मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रॉब्लम है, ये बुनियादी तौर पे इट्स अ वर्ल्ड वाइड मैनस. यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट्स फॉर अप टू 5% ऑफ द ग्लोबल GDP, जो कि तकरीबन $2 ट्रिलियन बनता है. $2 ट्रिलियन इज सच अ सम ऑफ मनी कि जिसको अगर आप इन्वेस्ट करें तो दुनिया के बहुत से भूखों को खाना मिल सकता है, कपड़ा मिल सकता है, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स दुनिया की तकरीबन 20 to 30% पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सकता है. तो ये हर साल एक बहुत बड़ी रकम जो है ये अनलॉफुली लोग जनरेट करते हैं, जिससे जो नेशंस हैं वो डिप्राइव रहती हैं. इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइम की जो हम बात करते हैं, ये दो इट्स द ये इकोनॉमिक क्राइम को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट जनरली ये अम्ब्रेला टर्म है. इट covers too many familiar offenses over time. New financial crimes also keep on emerging, और क्रिमिनल्स हर वक्त नए से नए टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करते रहते हैं, खा वो थ्रू ब्लॉकचेन हो, साइबर क्राइम हो, ये सब इसी के इसमें. लेकिन जनरली जो 6 मेन टाइप्स हैं फाइनेंशियल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम जिसको हम कहते हैं, उसको हम देख लेते हैं. कि सबसे पहली क्या चीज़ है कि ब्राइबरी एंड करप्शन. करप्शन क्या है? करप्शन इज द मिसयूज ऑफ वंस पोजीशन और ऑफिस टू कमिट क्राइम्स व्हिच कैन इंक्लूड थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एंड सॉलिसिटिंग ऑफ ब्राइब्स. And bribery is the paying or offering of illegal inducement usually in exchange for an unfair and illegitimate advantage. करप्शन यानी ग्रॉसली उन तमाम की तमाम चीज़ों को कवर करता है जहां पे आप अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करते हैं और किसी भी दूसरे शख्स को अनड्यू एडवांटेज देते हैं, उसके अगेंस्ट में जो भी आप उससे एक्सचेंज करते हैं. An organization commits an offense of enabling if it consents to a bribe being paid on its behalf, but it would also have committed an offense of omission if someone committed bribery on its behalf, and the organization could not show that its procedures for preventing bribery were adequate nonetheless. यानी ऑर्गेनाइजेशन खुद भी अगर किसी जगह पे बतौर ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं पे ब्राइबरी करती है, वो भी, और अगर वो खुद से फेल रहती है इसको डिटेक्ट करने में, तो भी कहीं ना कहीं वो करप्शन में शामिल है या उसे फैसिलिटेट कर रही है. अच्छा जी, मनी लॉन्ड्रिंग ये सबसे सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जैसे कि आपकी नाम स्लाइड शेयर नहीं हो रही, क्या जरा वो देख लो. शेयर नहीं हो रही. जी अब हो रही है. नो सर, दोबारा से स्क्रीन शेयर पे जरा क्लिक करें और स्लाइड सिलेक्ट कर लें. थैंक यू. ओके ओके सर, थैंक यू. अच्छा जी, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इलीगल हैंडलिंग ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है. यानी तमाम की तमाम पैसा जो जनरेट होता है इलीगल मीन्स से, वो बुनियादी तौर पे उसको हम सादा सादा अल्फाज में उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं. जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो या उससे ज्यादा हो, वैसे कुछ ऑफेंसेस ऑलरेडी डिस्क्राइब भी किए हुए हैं. यानी कुछ कोई तकरीबन 22 हैं प्रेडिकेट ऑफेंसेस जिनको हम बोलते हैं. प्रेडिकेट ऑफेंस वो ऑफेंस होता है, मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप कहेंगे जी फंड्स ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह या उसको छुपाना, ये एक सेकेंडरी क्राइम है. इसके अगेंस्ट एक प्राइमरी क्राइम होता है.
जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस वो क्राइम जो कि प्राइमरी क्राइम है, जो कि जैसे कि करप्शन जो है वो प्राइमरी क्राइम है, और उसके अगेंस्ट जो पैसा जनरेट हुआ है उसको छुपाना, हाइड करना, उसको लेजिटिमेट इनकम के तौर पर शो करना, इसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि ये सेकेंडरी क्राइम है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं जो कि तकरीबन 22 जनरली, जैसे कि इवन टैक्स इवेजन भी उसमें शामिल है, यानी अगर आप टैक्स इवेट करते हैं तो वो भी प्रेडिकेट ऑफेंसेस में शामिल है, यानी वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का ही पार्ट है, इलीगल टेंटेड मनी में शुमार किया जाता है। प्रोफेशनल्स एनेबल मनी लॉन्ड्रिंग वेदर नोइंगली और अननोइंगली, ये हमारा जो पिप्फा है, जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स क्योंकि अपने क्लाइंट्स के को फाइनेंशियल एडवाइजरी दे रहे होते हैं, लीगल एडवाइजरी दे रहे होते हैं, उनके फाइनेंशियल्स को हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जानते हुए या ना जानते हुए क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जब भी, और क्रिमिनल्स जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए, अपनी मनी को लॉन्डर करने के लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग को जस्ट सादा अल्फाज में इस तरह से समझ लें कि तमाम की तमाम मनी जो कि इलीगल तरीके से जनरेट होती है उसको छुपाने का और उसको लेजिटिमेट यानी राइटफुल इनकम शो करने के प्रोसीजर को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है फ्रॉड। जो थर्ड हम बात करें, फ्रॉड इज एन एक्ट ऑफ गेनिंग एन illicit advantage through deception, in particular by manipulating financial information or accounting reports। जब हम कॉर्पोरेट क्राइम की बात करेंगे, फ्रॉड में वैसे इंडिविजुअल फ्रॉड में तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जब हम फाइनेंशियल फ्रॉड कंपनीज या कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो उसमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है या अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करते हैं, वो भी फ्रॉड के जिम्मे में आते हैं। इसमें बहुत सी केसेस आपने देखे हैं। एनरॉन का केस था वेयर सीएफओ वाज हिमसेल्फ एक्टिवली इन्वॉल्व इन ओवरस्टेटिंग अर्निंग्स, जहां पे अर्निंग्स को ओवरस्टेट किया गया और डेट्स को कंसील किया गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो कि शेयर होल्डर्स थे, जो कि उस एंटिटी के टेक्निकली मालिक थे, उन्होंने जो अपना काम अपने एजेंट को दिया हुआ था, तो वो एजेंट ही टेक्निकली उनसे फ्रॉड करे। तो फ्रॉड मीन्स के जहां पे भी आप थ्रू डिसेप्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन भी उसी में फॉल करते हैं, यानी नोइंगली आप किसी को मिस रिप्रेजेंट करते हैं। एनरॉन का जो केस है वो एक बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का केस है, जिसमें स्पेशलिस्ट नॉलेज यानी टेक्निकली एक्सपर्ट लोगों ने इस कॉर्पोरेट फ्रॉड को या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को मैन्यूवर किया। तो ये बहुत सी फ्रॉड की एग्जांपल्स में से, यानी फ्रॉड को अगर आप एक बिल्कुल डाउन द लाइन फ्रॉम स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करें या कॉर्पोरेट एंटिटीज तक चले जाएं, तो उसमें तमाम की तमाम जिस तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन है और नोइंगली प्रेजेंटिंग अ फैक्ट, तो वो फ्रॉड के ज़रिए में फॉल करेगी। When the law is broken in order that taxes legally due are not paid, then business individuals have evaded rather than avoided taxation। अब दो चीजें टैक्सेशन में भी हमने बात की कि टैक्सेशन भी फाइनेंशियल क्राइम के जुमरे में और प्रेडिकेट ऑफेंस में भी आता है। तो लॉ को दो तरीके से टैक्सेशन, एक होता है अवॉइडेंस टैक्स कि जहां पे आप अपना या सॉरी एक है इवेजन के टैक्स को आप इवेड कर रहे हैं कि आपका जो राइटफुल टैक्स है वो आप नहीं पे करते, और अवॉइडेंस वो है कि जहां पे आप लॉ की रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स को यूज करते हुए टैक्स का बेनिफिट लेते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा मामूली से डिफरेंट है। सपोज के अकाउंटेंट विद नो फॉर्मल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, नो मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी वाज जेल्ड फॉर tax fraud. He had understated his clients' earning and overstated their expenses in order to reduce their tax liabilities. तो keeping in view this very fact कि accountants इस process में involve होते हैं overall accounting में अपने client के behalf पे at the time जबकि वो किसी entity के साथ as financial services provide कर रहे हैं, और subsequently at another stage जहां पे वो किसी भी किस्म की ऑडिट या टैक्सेशन सर्विसेज एक्सटर्नल कंसल्टेंट के तौर पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट्स बीइंग अब जबकि एज यू ऑल नो के पिप्फा इज नाउ फुली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ आईफा, तो अब आप सब लोगों के ऊपर एक एनहांस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है। Enhanced responsibility in that aspect, now you will be
as like other bodies, you will also be subject of the same surveillance and compliance requirements as all other bodies of IFAC are subject of. तो पिप्फा बुनियादी तौर पे अब आपकी भी कंप्लायंस और की रिक्वायरमेंट्स टेक्निकली बढ़ जाएंगी, ज़्यादा आप पे फोकस भी बढ़ जाएगा, और आप जो आईफैक जो कि ओवरऑल रेगुलेटरी या अकाउंटेंट्स की बॉडी है उसकी आईज पे आप आएंगे। तो इसलिए भी इस सारे के सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन इज जनरली द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ प्राइवेटली ओन इंफॉर्मेशन। The information itself can take many forms, including scientific, technological developments, original design or work of art or performance. यानी मैं किसी दूसरे के शख्स को के काम को अपना काम कह के प्रेजेंट करूँ, उस पर अर्निंग्स जो भी मैं करूँगा, हाँ वो साइंटिफिक कोई दरियाफ्त है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, कोई डिज़ाइन है, कोई पीस ऑफ आर्ट है, ये सब भी फ्रॉड के ब्रीच के जुमरे में आता है, यानी इलीगल बनी के जुमरे में आता है, जहां पे भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वायलेशन करते हैं। Violation can include industrial espionage, including the illegal accessing or hacking of computer systems, copyright piracy, and sale of counterfeit goods. ये सभी के सभी इसमें फॉलो करेंगे। साइबर क्राइम आप सब लोग माशाल्लाह इसको बड़ी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि ब्रॉड कैटेगरी, इसमें हर तरह का साइबर क्राइम आ जाएगा, वो ऑनलाइन सिस्टम्स का एक्सेस हो, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस हो, ईमेल की मिसयूटिलाइजेशन है। Cybercrime typically involves the intent to cause harm, whether to individuals, organizations, or infrastructure, or to commit financial or identity theft. Hacking इसमें शामिल है the development and distribution of malicious software, the use of false identities to open accounts and obtain credit or cash. These are all cyber crimes. The swift, invisible, and often remote manner of these crimes means the individual can easily become unwittingly enablers. अच्छा होता क्या है कि आप भी देखते हैं कि आपके पास बहुत सी ईमेल्स आती हैं जो कि आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। तो बुनियादी तौर पे जितने भी ये हैकर्स हैं जो मैलिशियसली टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, उनका पर्पस भी फाइनेंशियल गेन्स होता है। तो ये बुनियादी तौर पे एक ओवरऑल ब्रीफ बताने का मकसद ये था कि हमें थोड़ा सा एक माइंड ओपनिंग हो जाए कि बुनियादी तौर पे किस किस तरह के क्राइम्स जो है फाइनेंशियल क्राइम के जुमरे में फॉल करते हैं। तो ये फाइनेंशियल क्राइम जैसे कि आपको बताया कि ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन पर एनम कॉस्ट कर रहा है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को। तो ग्लोबली कंट्रीज ने इस मैनेस को कैच करने, इसको एड्रेस करने के लिए डिफरेंट एंटिटीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई और उन्होंने इसको गाहे बगाहे डिफरेंट प्रिंसिपल्स बनाए। बेजल एक इंस्टीट्यूट है जो कि बैंकिंग सेक्टर की गवर्नेंस को देखता है, उसने एक बेजल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स दिया 1988 में। इसमें बुनियादी तौर पे सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं जो G7 कंट्रीज के थे। 1988 में ये फॉर्म हुई थी बॉडी, और उसके बाद बहुत सी और भी आई। से यूनाइटेड नेशंस की वियना कन्वेंशन आई जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को स्पेसिफिकली कैटर करती है, और जो कि आपने अक्सर नाम सुना होगा, पाकिस्तान भी इस वक्त फैटफ के ग्रे लिस्ट में भी है, तो इसका तो आप बहुत ज्यादा नाम सुनते होंगे, फैटफ जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये 1989 में डेवलप हुई। तो ग्लोबली बहुत से इनिशिएटिव स्टार्ट हो गए इस चीज को एड्रेस करने के लिए कि जितनी भी इलीगल वेल्थ जनरेट हो रही है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। 88 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये सिग्नेटरीज को अर्ज करती है कि क्या करें जी, एस्टैब्लिश मनी लॉन्ड्रिंग एज ए क्रिमिनल ऑफेंस इन रिलेशन टू ड्रग मनी, कि ड्रग मनी से रिलेटेड जो भी पैसा जनरेट होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाए। Enact legislation to identify, trace, seize and forfeit proceeds of drug trafficking, जहां लेजिस्लेशन बनाए जाए ताकि आइडेंटिफाई किया जाए, ट्रेस किया जाए, सीज किया जाए और फॉरफीट किया जाए तमाम की तमाम प्रोसीड्स जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग के रिलेशन में जनरेट हुई। Implement measures designed to combat money laundering involving drug money, वो तमाम के तमाम मेजर्स लिए जाए कि जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट किया जा सके। मेक मनी लॉन्ड्रिंग एन एक्सट्राडिटेबल ऑफेंस। अच्छा जी,
इसकी रीजंस क्या थी, क्यों लार्ज स्केल ड्रग अब्यूजेस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा स्केल पे ड्रग प्रॉब्लम्स, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी। लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि कॉम्बैट किया जाए मनी लॉन्ड्रिंग को। इसमें ऑनवर्ड अगर हम जाएं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वेपन स्मगलिंग भी शामिल है, यानी ये भी एक बहुत सा क्राइम जिसमें बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और वेपन्स की स्मगलिंग में। अल्टीमेटली आगे आप जाके देखेंगे कि हम जब बात करेंगे काउंटर फाइनेंसिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग की, तो टेररिज्म फाइनेंसिंग में भी कहीं ना कहीं वेपन्स और ह्यूमन की यूजेज है, और उसमें भी इसी तरह ही फंड्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। यानी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी की भी अगर हम बात करें तो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी विदाउट ह्यूमन रिसोर्स और विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। इसके बाद एक और नेक्स्ट कन्वेंशन आती है जो कि 1990 की कन्वेंशन है, फॉर ऑन लॉन्ड्रिंग सर्च सीजर एंड कन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ स्ट्रासबर्ग कन्वेंशन है। फिर 2000 में यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको पलेर्मो कन्वेंशन भी बोलते हैं, which requires signatory nations to criminalize money laundering for the widest range of predicate offense। जो हमने predicate offense की बात की वो तकरीबन कोई 22 ओवरऑल ऑफेंसेस हैं, जिसमें ये सभी चीजें आती हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग भी आ जाती है, ह्यूमन स्मगलिंग भी आ जाती है, और भी बहुत से क्राइम्स हैं। And to set up a comprehensive domestic regime to combat money laundering, including customer identification and suspicious activity reporting। अब ये दो बहुत क्रिटिकल चीजें हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्राइमरीली अगर आप इसको देखें ना तो फाइनेंशियल सेक्टर में स्टार्ट हुआ, कि जो कि कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब उनका अकाउंट ओपन करता है, तो उस स्टेज पे क्योंकि बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम एज ए कंडूट यूज होता है क्रिमिनल मनी को ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसफर करने में, उसको पार्क करने में, तो इसलिए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई। और फिर आगे कि कस्टमर की अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है तो उसको भी रिपोर्ट किया। तो मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम में एक जो प्राइमरीली रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की है, और उसके बाद सेकेंडरी कि जहां कहीं भी सस्पिशियस एक्टिविटी आप कस्टमर की देखें उसको रिपोर्ट किया जाए। तो ये दो पॉइंट्स में रखें, आगे चलते हैं। इसके बाद 2005 की यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, मेरिडा कन्वेंशन भी, व्हिच क्रिमिनलाइजेस द लॉन्ड्रिंग ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ करप्शन एंड एड्रेसेस द ट्रेसिंग, फ्रीजिंग, सीजर एंड कन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ करप्शन। तो बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि जी अभी हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ये रिकग्निशन शायद 1 साल 2 साल पहले जब से हम शायद ग्रे लिस्ट में हैं तो ज्यादा वाइडली ये टर्म यूज होना शुरू हुई है मनी लॉन्ड्रिंग की और ग्रे लिस्ट वगैरह की। बट अगर आप देखें तो दुनिया में ये काम काफी अर्सा पहले स्टार्ट हो गया, और अगर हम इससे भी पीछे जाएं तो 50s में भी इवन वहां पे या 70s में भी बहुत सी लेजिस्लेशन अमेरिका में या डेवलप्ड वर्ल्ड में बनती रही है। 1974 में बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एस्टैब्लिश हुई, 1989 में फाइनेंशियल टास्क फोर्स फॉर्म हुई। इसके बाद कुछ रीजनल बॉडीज हैं जो कि एफएटीएफ की स्टाइल, इस तरह आपने नाम सुना होगा, एशिया पैसिफिक ग्रुप है। एशिया पैसिफिक ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें हम बतौर पाकिस्तान जिसका मेंबर है। पाकिस्तान जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि ग्लोबल बॉडी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैट करने के लिए बनाई गई है, फैटएफ का डायरेक्ट मेंबर नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप का मेंबर है, और एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑब्वियसली वो रिपोर्टिंग बॉडी, उसमें एक रीजनल ऑफिस है, एक हेड ऑफिस का, और एक वॉल्सवर्थ ग्रुप है जो कि बैंकों का ग्रुप है। ये 2000 में फॉर्म किया गया। एगमॉन्ट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जो यूनिट्स हैं ये एगमॉन्ट ग्रुप इसका ग्रुप है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स का। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स का ग्लोबल प्रोग्राम है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग पे बना हुआ है, जो कि ओवरऑल पूरी दुनिया में को इस वक्त कवर करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी पर्सपेक्टिव है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जब गया तो बहुत से आईएमएफ ने भी कुछ कंडीशनैलिटीज लगी। रादर ये तीनों जितनी भी बॉडीज हैं, जैसा आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट हो गया, ये तकरीबन इकट्ठे और इन लॉक स्टेप काम करते हैं। यानी अगर फैटएफ ने कोई किसी भी कंट्री को ऑब्जर्व किया है तो लाइकली है कि आईएमएफ भी वही ऑब्जर्वेशन लेगा आपकी। अच्छा जी, आते हैं यूएनओडीसी का जो ग्लोबल प्रोग्राम है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसकी नेशनल कॉम्बैटिंग एबिलिटी कंट्रीज की वो चेक करता है।
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की क्या स्टेज है, यानी आपके यहाँ क्रिमिनली इस मैनर्स को किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर्स आपके कंट्री में किस लेवल का है, प्रोसिक्यूशन किस तरह हो रही है, क्या क्वालिटी है एडजुडिकेशन की आपके कंट्री में, और क्या ये सब कुछ होने के बाद आपका कंट्री में जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एसेट है उसको फोरफीट करने का क्या फ्रेमवर्क है। तो बुनियादी तौर पे ये सारी की सारी एबिलिटी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, एडजुडिकेशन और अल्टीमेटली एसेट फॉर फ्यूचर, ये तमाम के तमाम फंक्शंस को ये देखता है कि क्या एक कंट्री एक यूनिफाइड होल है, एज अ होल यूनिट काम कर रहा है, उसका लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो ना सिर्फ ये कि एक क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट करे, प्रोसिक्यूट करे, एडजुडिकेट करे, और फिर उससे जो एसेट्स की रिकवरी भी करे, फोरफीट भी करे। तो ये इनका एक ग्लोबल प्रोग्राम है। ये हमने जो बात की थी फाइनेंस, जो एफएटीएफ की स्टाइल बॉडीज हैं, ये डिफरेंट एशिया स्पेसिफिक ग्रुप है, कैरिबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीकन एएमएल ग्रुप है, साउथ अमेरिकन में है, इसी तरह ये मिडिल ईस्ट का अलग से, सभी यानी डिफरेंट रीजन्स को वर्ल्ड में डिवाइड किया हुआ है, और ये जो सब ग्रुप्स हैं उसको लुक आफ्टर करते हैं। वॉल्सबर्ग ग्रुप जो है जी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स का ग्रुप है, जो कि लीडिंग बैंक्स हैं दुनिया के, बैंक ऑफ सैंटेंडर, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो, मित्सुबिशी, बार्कलेज है, सिटी ग्रुप है, गोल्डमैन सैक है, ड्यूशे बैंक है, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, ये सब लीडिंग बैंक्स है वर्ल्ड के, यानी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक जिनको हम बोलते हैं। तो इसका वॉल्सबर्ग ग्रुप का एक एबीसी प्रोग्राम, इसको एंटी ब्राइबरी एंड करप्शन कंप्लायंस प्रोग्राम गाइडेंस भी इन्होंने इसकी इशू की हुई है। ये सब के सब इन इन ग्रुप मेंबर्स एक सर्टेन प्रोग्राम को फॉलो करते हैं कि किस तरह से इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना है। ये गाहे बगाहे अपनी प्रोग्राम गाइडेंस को अपडेट भी करते रहते हैं, और ये वाइडर जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये ऐसे किसी भी बैंक से डील नहीं करेंगे जो कि इनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता। यानी अगर पाकिस्तान के एक बैंक ने इंटरनेशनली एक एलसी स्टैब्लिश करनी है, अमेरिका पे, यूरोप में, कहीं पे भी, तो पाकिस्तानी बैंक्स को भी इनके प्रोग्राम का कंप्लायंस इंश्योर करना है। The overall objective of this guidance is to promote a culture of ethical business practices and compliance with anti-bribery and corruption legal and regulatory requirements. The guidance has been developed in collaboration with Basel Institute of Governance and with input from the Transparency International. ये जो guidance की हम बात कर रहे हैं, ये जो भी मैं बात कर रही थी कि ये सब इन collaboration ये सारी के सारी frameworks develop होते हैं। इसमें बेसल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस की भी इनपुट शामिल है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी इस पे इनपुट शामिल है, ये जो प्रोग्राम ओवरऑल डिजाइन किया गया है। आईएमएफ की अगर हम बात करें, तो आईएमएफ का जो बहुत से एरियाज में से एक मेजर एरिया है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग भी है, और उसका अपना एक असेसमेंट मैकेनिज्म है। किसी भी कंट्री को, मेंबर कंट्री को, जब वो फाइनेंस करने जाता है तो वो उस असेसमेंट फ्रेमवर्क के अगेंस्ट उसको चेक करता है कि जो फैटएफ की 40 रिकमेंडेशंस के मुताबिक एसेसर्स जो है, आईएमएफ के जो एसेसर्स होते हैं वो लीगल, किसी भी कंट्री के लीगल फ्रेमवर्क हो, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क। सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क की जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सुपरविजन मैकेनिज्म या फ्रेमवर्क कितना स्ट्रांग है। They identify the strengths and weaknesses of the system, evaluate whether measures in place at the time of assessment mission are effectively implemented, and recommend actions to correct deficiencies and come into compliance with the FATF standards. Information gathered through the assessment process is often used to develop a technical assistance program for the assessed country. आपने देखा होगा पाकिस्तान का एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम है जिसमें उनको 26 पॉइंट्स का एक एक्शन प्लान दिया गया है कि ये 26 प्लान है। जब असेसर्स ने असेस किया उसके बाद 26 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया कि जी आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर हम आपको कंसिडर करेंगे कि आपको ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं निकालना। इसके बाद एक डिटेल असेसमेंट रिपोर्ट होती है, उसके बाद एक रिपोर्ट साइमल्टेनियसली ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स भी आईएमएफ ही इसको लुक आफ्टर करती है। आईएमएफ जो कंडक्ट करता है असेसमेंट्स बहुत तरह की करता है। एक वो फाइनेंशियल सेक्टर का असेसमेंट प्रोग्राम है और उसका ऑफ शोर फाइनेंशियल सेंटर असेसमेंट का प्रोग्राम है।
IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब की असेसमेंट्स एट टाइम, ये इसको हम जिस तरह वो आपने देखा होगा कि जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन की बात करते हैं, म्यूचुअल इवैल्यूएशन मीन जहाँ पे एक से ज्यादा बॉडीज मिल के किसी कंट्रीज को असेस कर रही होती है, उसमें IMF भी हो सकता है, उसमें वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, उसमें फैटफ भी हो सकता है, उसमें इसके अलावा भी कोई भी ओरिजिनल बॉडी भी हो सकती है। इसके बाद आ जाए वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का जी एक नेशनल रिस्क असेसमेंट टूल है। इस टूल के तकरीबन 9 टेक्निकली मॉड्यूल्स हैं। इसमें फर्स्ट जो एरिया है वो मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क असेसमेंट है। मॉड्यूल 1 चेक करता है कि थ्रेट असेसमेंट किसी भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मॉड्यूल 2 है नेशनल वल्नरेबिलिटी। थ्रेट असेसमेंट के आपका कंट्री पाकिस्तान जोग्राफिकली सपोज जिस जगह पे एग्जिस्ट करता है, इकोनॉमिकली जहाँ एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे वो उसको मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कितना थ्रेट है, और अगर थ्रेट है तो उसका जो नेशनल सिस्टम है वो कितना वर्नरेबल है उस थ्रेट के लिए। ठीक है जी। तीसरा मॉड्यूल बैंकिंग सेक्टर की वर्नरेबिलिटी देखते हैं, सिक्योरिटी सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग का मॉड्यूल है, और उसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंक्लूजन की रिस्क असेसमेंट। जो भी नया प्रोडक्ट या नई फाइनेंशियल सर्विसेज आप इंट्रोड्यूस करते हैं उसको भी असेस किया जाता है कंट्री वाइज। अच्छा जी, यूरोपियन यूनियन का एक ओवरऑल AML पे डायरेक्टिव्स हैं, डिफरेंट डायरेक्टिव्स। फिफ्थ मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव, इसके बाद बल्कि 6th डायरेक्टिव भी आ चुका है, जो कि ये क्रिप्टो करेंसीज वगैरह को कवर कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव का मतलब ये है कि ये वो डायरेक्टिव है जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट के थ्रू तमाम के तमाम यूरोपियन कंट्रीज, इस समझ लें इसको नियर टू दी लॉ का दर्जा दिया जाता है, और ये तमाम के तमाम कंट्रीज पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी है। जो अभी लेटेस्ट डायरेक्टिव है उस पर क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी ऑब्लाइज्ड एंटिटी, यानी दे हैव टू रिपोर्ट ऑल दोज ट्रांजैक्शंस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में फॉल करती है। ये मैंने इस पे से कुछ सैलिएंट आइटम्स ले लिए कि जिस तरह क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी लाइकली है इंट्रोड्यूस, स्टेट बैंक इज कंसिडरिंग फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज एज वेल। दिस, ये जो ऑब्लाइज्ड एंटिटी, इसका क्या मतलब है? दिस मींस कि दिस एंटिटी इज ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म सर्टेन थिंग। व्हाट थिंग्स? कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन या कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को परफॉर्म करेगा, और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट किया जाएगा। इसी तरह प्रीपेड कार्ड्स, आप किसी भी जनरल स्टोर पे जाएं और 200 यूरो जमा कराएं, वो आपको एक इन बिल्ट, जिस तरह का आपका क्रेडिट कार्ड है, हमें तो बैंक से मिलता है, पाकिस्तान में तो इस तरह के प्रीपेड कार्ड्स शायद एग्जिस्ट नहीं करते, बट इंटरनेशनली ये प्रीपेड कार्ड एग्जिस्ट करते हैं। इसकी लिमिट्स को उन्होंने फर्दर रिड्यूस किया है ताकि इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग के समय को, मनी लॉन्ड्रिंग के कंटेंट को कम किया जा सके। हाई वैल्यू गुड्स जिसमें आर्ट डीलर्स हैं, इसमें भी उसकी एक सर्टेन अमाउंट स्पेसिफाई कर दी कि $10,000 और मोर, अगर जहां पे भी आएगी उसको भी रिपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद SCCP ने भी यहाँ पे कीपिंग व्यू बेनिफिशियल ऑनरशिप मैंडेटरी कर दिया तमाम कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, और बेनिफिशियल ऑनरशिप रजिस्टर्स, ये अल्टीमेट बेनिफिट कि एक कॉर्पोरेट एंटिटी का अल्टीमेट नेचुरल पर्सन कौन है जो कि इसको ओन करता है, इसको भी यूरोपियन यूनियन ने शामिल किया हुआ है। तमाम की तमाम थर्ड कंट्रीज के साथ यूरोपियन यूनियन डील करता है, उसके साथ भी सर्टेन लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर रही हैं कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जब यूरोपियन यूनियन का कोई भी कंट्री हाई रिस्क थर्ड कंट्री से पे जाएगा तो उसके क्या मेजर्स लेने होंगे। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, आप बहुत ज्यादा अखबारों में भी सुनते हैं, मीडिया में भी सुनते हैं कि पेप लिस्ट, हमारे यहाँ वो तमाम के तमाम लोग जो कि पब्लिकली या पॉलिटिकली एक्सपोज यानी हाई पोजीशंस पे हैं, वो सब के सब इसमें फॉल करते हैं। ये यूरोपियन यूनियन में भी पेप के ऊपर खास फोकस है। इसके बाद आ जाए जी OFAC, जो कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, यूनाइटेड स्टेट्स का US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के अंदर ये एक ऑफिस है। ये इन्फोर्स करता है इकोनॉमिक और ट्रेड सैंक्शंस। US की फॉरेन पॉलिसी है कि तमाम कि वो सैंक्शंस इम्पोज करता है कंट्रीज पे, इंडिविजुअल्स पे, एंटिटीज पे।
यानी अगर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम तालिबान का एग्जांपल ले लें, तो यूनाइटेड स्टेट्स उसके ऊपर सैंक्शन इम्पोज करता है कि जो कोई कंट्री भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ताल्लुक रखना चाहता है, वो इन एंटिटीज के साथ, इन इंडिविजुअल्स के साथ और इन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगा जो कि इस तरह के नारकोटिक्स की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो वो सैंक्शंस, एक सैंक्शंस का प्रोग्राम है पूरा, उसके तहत ये चलते हैं। उसमें 3 तरह की एक लिस्ट है, यानी समझ लें कि एक स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स लिस्ट है, कंसोलिडेटेड लिस्ट है और एडिशनल ओफैक की सैंक्शंस लिस्ट है। डिफरेंट सैंक्शन प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें। चीदा चीदा काउंटर नारकोटिक सैंक्शंस हैं, काउंटर टेररिज्म सैंक्शंस हैं, क्यूबा से रिलेटेड सैंक्शंस हैं, ईरान की आपने बड़ा वाइडली सुनते हैं, ईरान से रिलेटेड सैंक्शंस हैं जो कि यूएस ने इम्पोज की हुई, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला, ये तमाम की तमाम डिफरेंट सैंक्शंस प्रोग्राम है जिसपे यूनाइटेड स्टेट्स इन कंट्रीज को एक सैंक्शन करता है कि इनसे किस हद तक ट्रेड किया जा सकता है। ये हमारी भी खातून एक इसमें है, जिससे नेशनल्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स बहुत से उसमें आते हैं, ये भी इसमें शामिल है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक अपना टारगेटिंग फाइनेंशियल सैंक्शंस का मैकेनिज्म है, और जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के लोग अगर यहाँ पे कुछ अटेंड कर रहे हैं उस बात को जानते हैं कि तमाम के तमाम फाइनेंशियल सेक्टर को अपने क्लाइंट्स को स्क्रीन करना है अगेंस्ट दी सैंक्शन, ऑल द सैंक्शन, खा वो फैक्ट की सैंक्शंस है, खा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन इंडिविजुअल्स या एंटिटीज हैं। यानी हम बतौर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बतौर अकाउंटेंट इनमें से किसी का भी अपने पास ना अकाउंट ना उसको ऐसे क्लाइंट अडॉप्ट कर सकते हैं जो कहीं पे भी उसको सैंक्शन किया हुआ है, हाँ वो यूनाइटेड नेशंस ने इसको सैंक्शन किया हुआ है, इंडिविजुअल को या एंटिटी को। तो इस तरह के किसी भी सैंक्शन एंटिटी या सैंक्शन इंडिविजुअल के साथ हम रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। Under this regime, all states have to implement the measures of asset freeze, targeted financial sanctions, arms embargo, and travel ban on individual entities that are designated by the Sanctions Committee on the United Nations Consolidated List. Sanctions regime यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन है 1267 इसके तहत एस्टैब्लिश हुई है। इसके अलावा भी बहुत सी रेजोल्यूशन है, अब तो बहुत सी आ गई जिसमें आर्म्स एम्बार्गो, टारगेटेड एसेट फ्रीजेस और बहुत सी डिफरेंट नेचर की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की सैंक्शंस लगाती है, और वो फिर रिस्पेक्टिवली आपके पाकिस्तान में थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हम तक पहुंचती हैं, और ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अदर भी इम्प्लीमेंटेड एजेंसीज जो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के लिए। सैंक्शन रिजीम को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट के तहत 1948 का एक्ट है उसके तहत इंप्लीमेंट किया गया। इसके बाद डिफरेंट स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इशू करती रहती है और उसको अपडेट करती रहती है। यूनाइटेड किंगडम का भी एएमएल रिजीम में जो प्राइमरी एक्ट है वो टेररिस्ट एसेट्स फ्रीजिंग एक्ट है, जिसको हम टाफा बोलते हैं। 2010 में ये बेसिक एक्ट वहां पे इंट्रोड्यूस किया। Her Majesty Treasury maintains consolidated list of targets that include persons and entities designated targets by UN, US, UK। ये 7,000 से भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा अब तो हो गए। इस तरह यूके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट है 2002 का, ये ओवरऑल जो मनी लॉन्ड्रिंग की रजीम है इन लॉस को कवर करती है। इसके अलावा बहुत से सपोर्टिंग कॉर्पोरेट लॉज भी हैं, लेकिन ये सीधा सीधा जो लॉज है यूके की एएमएल रजीम के। यूनाइटेड स्टेट्स में आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा पैट्रियट एक्ट का। उस पर जो बुनियादी तौर पर डिटेक्ट और टेररिज्म से ही स्टार्ट हुआ था। ये 9/11 के बाद जो पहला सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव पीस वर्क है वो ये यूएस पैट्रियट एक्ट है। इस तरह बैंकर सेक्रेसी एक बीएसए 1970 का है, इसमें अब अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। करेंसी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग की इसमें भी जिक्र है। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ करेंसी है। फिर फाइनेंशियल क्राइम्स नेटवर्क एनफोर्समेंट नेटवर्क है। और फैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये सब के सब इस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। बैंकर सिक्रेसी एक्ट पे अगर मैं जाऊँ तो ये 1970 में आया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि वो यूनाइटेड स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट इसको इंश्योर करती हैं कि ताकि प्रिवेंट किया जाए, डिटेक्ट किया जाए मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ऑफेंस को। इसकी 5 बुनियादी चीजें हैं, इसको स्पीडीली हम फॉरवर्ड करते हैं
कि क्या कि तमाम की तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अपनी रिटर्न पॉलिसीज होनी चाहिए, एक डेजिग्नेटेड एएमएल ऑफिसर होना चाहिए। ये 1970 की मैं बात कर रहा हूँ, तब से ये इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। हमारे यहाँ ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सी चीजें अब आना शुरू हुई हैं। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल एएमएल फ्रेमवर्क, ट्रेनिंग चेकअप यानी कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है तमाम के तमाम जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से वाबस्ता हैं, उनको एएमएल से रिलेटेड ट्रेनिंग गाय बगाए प्रोवाइड करती है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, इसको कस्टमर ड्यू डिलिजेंस या बेनिफिशियल ओनरशिप आइडेंटिफिकेशन भी हम कह सकते हैं। CTR इज द करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। मैंने आपसे बात की थी, दो चीजें बुनियादी एलिमेंट है एएमएल के फ्रेमवर्क में, रिजीम में। वो एक कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के आप जो कस्टमर से रिलेशनशिप में जा रहे हैं, हाँ वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हाँ प्रोफेशनल एंटिटीज या प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, तो कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस के आप जिस कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक लेजिटिमेट बिजनेस ऑनर है या वो एक मनी लॉन्ड्रर या इलीगल टेंटेड मनी है उसके पास। CTR इज द करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अगर $10,000 या उससे अबव की अमाउंट आती है, मैं सवाल इंशाल्लाह सबके लेता हूँ, अगर किसी का भी सवाल होगा उसको एड्रेस करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि टाइम हमारे पास कम है, जो बुनियादी चीज मैं बेसिक एक फ्रेमवर्क आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ उसको पहले मैं कम्युनिकेट कर दूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जिस आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट कि जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आए उसको जवाब दिया जाए, उसी में इंटरेक्शन होता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, इस पे बहुत ज्यादा लोगों से सवाल जवाब या इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, जो कि एक एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। बट नेवरदलेस वी हैव टू मूव थ्रू दिस। अच्छा जी, ये CTR इस करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है। हमारे यहाँ ये STR कहलाती है, इसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। ये फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को हम सबमिट करते हैं। इंटरनेशनली इसका नाम सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, कि आप किसी के भी फाइनेंशियल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं तो आप इसको रिपोर्ट करते हैं। ये फॉरेन बैंक अकाउंट रिपोर्ट है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है कि वो जहां कहीं भी फॉरेन बैंक्स अगर इंडिविजुअल US सिटीजन्स या रेजिडेंट्स फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहीं पे भी है तो वो भी रिपोर्ट करना उनके लिए जरूरी है। एक मनी लॉन्ड्रिंग लॉग के जितनी भी कैश परचेजेस वो की जा रही हैं, यानी जो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, एंटिटीज कर रही हैं, उनको रिपोर्ट भी करना है। यानी मैं बतौर इंडिविजुअल अगर यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल हूँ तो ये मुझ पर मैंडेटरी है कि मैं जितनी भी मनी ऑर्डर्स, ट्रैवलर चेक्स या कैशियर चेक्स परचेज कर रहा हूँ, अगर उसकी अमाउंट $10,000 से तक है तो मुझे उसको रिपोर्ट करना है, उसके अलावा भी रिपोर्ट करना है। ये डिफरेंट तरह यानी वो द फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड एट द फाइनेंशियल फॉर एटलीस्ट 5 years, 5 साल तक इस फॉर्म को मेंटेन करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ करेंसी और मनी इंस्ट्रूमेंट, जहां कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद या अदरवाइज कोई ट्रांजैक्शनल रिपोर्टिंग हो रही तो ये भी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन भी रिपोर्ट करनी करेंसी की। जिस तरह अगर इसकी सिंपल सी एग्जांपल इस तरह दूं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ रुपये होता है, जब एक्सेस डॉलर हमारे पास आता है तो वी हैव टू सरेंडर इट टू अनदर इंटरनेशनल कंट्री, या जहां पे भी हम उसका कैश को सरेंडर करते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी भी दूसरे मुल्क में जाके, तो वो लाइकली है कि वो यूनाइटेड स्टेट में भी आप सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट चैनल्स भी, आप ऑफशोर यूनिट भी कोई रख सकते हैं। तो जब कैश ट्रांसपोर्टेशन होती है, जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा कैश इकट्ठा हो जाएगा तो उसको फिर ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये वो ट्रांसपोर्टेशन भी आपने अगर अक्रॉस द बॉर्डर्स कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो उसको भी रिपोर्ट की जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। ये ओवरऑल जैसे कि बताई गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये यूं समझ लीजिए कि एक इस वक्त इसका जो रिकमेंडेशंस हैं वो तकरीबन स्टैंडर्ड्स का दर्जा रखते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ IFRS होते हैं ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो समझ लें ये तकरीबन अगर उसके इक्विवेलेंट नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, क्योंकि ये इसकी सिर्फ थोड़ा सा इसमें ये होता है कि ये कंट्रीज के ऊपर है कि वो इसको अपने कहीं लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। फैटफ का जो मैंडेट है ये 89 में फॉर्म हुई, उसके बाद इसका फिर मैंडेट फर्दर भी एक्सटेंड किया, जिसमें आपने देखा कि टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इसके जुमरे में शामिल कर दी, और अप्रैल 2008 फैटफ मैंडेट वाइडन टू इंक्लूड पर्टिकुलरली प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। तो 3 एलिमेंट जिसको हम कहते हैं AML, CFT और CPF, यानी तीनों चीजें मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, ये तीनों अब इसके एम्बिट में आती हैं।
FATF is a policy-making body which works to generate political will to bring about national legislative and regulatory reforms to combat money laundering and terrorism financing. FATF क्या करते हैं जी? Examines methods, techniques, and trends in money laundering and terrorism financing to ensure the continued relevance of its policies and standards. जो दुनिया में डेवलपमेंट आती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ रही हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, साइबर क्राइम्स आ रहे हैं, ब्लॉकचेन आ रही है, ये सब की सब को मद्देनजर रखते हुए जो नए नए तरीके क्रिमिनल्स अडॉप्ट करते हैं, उसको कॉम्बैट करने के लिए फैटफ भी अपने प्रोसीजर्स को, मेथड्स को अपडेट करता रहता है और अपनी गाइडेंस को भी अपडेट करता रहता है। तो इस सिलसिले में उसने तकरीबन कोई 40 रिकमेंडेशन इस वक्त प्रिवेल करती हैं। पहले 49 थी, फिर वो 9 को मर्ज करके 40 में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें क्या बुनियादी चीजें? एक लीगल फ्रेमवर्क पे एम्फोसिस है, फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम्स क्या होने चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट पे है, और कंट्रीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाएं इस मैनेस को कंट्रोल करने के लिए। इसको ब्रॉडली अगर देख लें तो AML, CFT, CPF कि ये जो 40 रिकमेंडेशंस है उसमें पहला जो 2 हैं वो AML के और CFT के फंक्शन को देखती, पॉलिसीज और कोऑर्डिनेशन किया था। फिर मनी लॉन्ड्रिंग और कॉन्फिस्केशन को रेगुलेशन 3 और 4 देख ली हैं। फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए 5, 6, 7, 8 हैं। इस तरह अगर आप देखें, फिर इसके बाद जो ये D है, ये तकरीबन प्रिवेंटिव मेजर्स को दिखाती है, जिसमें तमाम के तमाम डिफरेंट के कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और रिकॉर्ड कीपिंग का क्या मैकेनिज्म होगा, कस्टमर की एक्टिविटीज या पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग है, वैल्यू ट्रांसफर सर्विसेज हैं, वायर ट्रांसफर है, न्यू टेक्नोलॉजीज, इन सब के को ये कवर करती है। फिर रिलायंस ऑन कंट्रोल्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रुप्स को किस तरह देखना है, रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, फिर डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस जो कि अब वो भी रेगुलेटरी एम्बिट में आ गए रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसपेरेंसी और बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ लीगल पर्संस के तमाम की तमाम जो लीगल अरेंजमेंट्स या लीगल पर्संस हैं उसके अगेंस्ट जो बेनिफिशियल ओनरशिप है उसको आइडेंटिटी का क्या मैकेनिज्म होगा, पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, ये भी इसमें शामिल है। अच्छा जी, फिर ऑपरेशनल एंड लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड है, जनरल रिक्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स गाइडेंस है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिलेटेड लास्ट 5 है। ये तकरीबन को 40 रिकमेंडेशंस हैं। इसको अगर एक को भी हम डिस्कस करें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट दिस इज जनरली कि किस तरह से फैटफ इस ओवरऑल फ्रेमवर्क को एडमिनिस्टर करता है स्टैंडर्ड्स को इशू करने के लिए। प्राइमरीली जो रिपोर्टिंग थी, यानी CDD की हम जब अगर बात करें, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग की बात करें या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग की बात करें, तो अर्लियर ऑन ये महदूद थी टू दी फाइनेंशियल सेक्टर, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट मूविंग फॉरवर्ड जो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस हैं, जैसे कि कैसीनोज, इंटरनेशनली लाइसेंस कैसीनोज होते हैं, लीगल बिजनेस होता है, हमारे यहाँ तो नहीं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, प्रेशियस स्टोन या मेटल्स में जो डील करते हैं, लॉयर्स हैं, नोटरीज हैं, और अदर इंडिपेंडेंट लीगल प्रोफेशनल, अकाउंटेंट्स, ट्रस्ट एंड कंपनी प्रोवाइडर्स, इन सब पे भी अब ये मैंडेटरी है कि ये भी अपने क्लाइंट का एक तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस CDD, फिर इस पे एक और वर्ड आता है, इसको कहते हैं एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शनल साइज और रिस्क एनहांस्ड रिस्क देते हो, आपको एनहांस्ड डिलिजेंस करनी होगी। ये सब पे अब मैंडेटरी है, इंक्लूडिंग दी अकाउंटेंट्स, ठीक है जी, कि वो रिपोर्टिंग भी करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन, करेंसी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग भी करेंगे, और जहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी कहीं पे भी अपने क्लाइंट की कोई देखेंगे तो वो भी रिपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक्सचेंज हाउसेस हैं, मनी रेमिटर्स हैं, अल्टरनेटिव रेमिटेंसेस, वायर ट्रांसफर, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैश कोरियर्स, इन सब पे अब एम्बेड में ये फॉल करते हैं। यानी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं इस वक्त वो भी ऑब्लाइज्ड एंटिटीज में से हैं, यानी दे आर प्रिज्यूम्ड टू रिपोर्ट। फैटफ की रिकमेंडेशंस का जो बुनियादी सैलियंट फीचर्स है बड़े सिंपल से, एक तो क्रिमिनलाइज करें मनी लॉन्ड्रिंग को और इसको सीरियस ऑफेंस में इंक्लूड किया जाए, तमाम की तमाम जो वियना, पलेर्मो और जितनी भी कन्वेंशन हुई है उसको फॉलो किया जाए। एज सच जो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में जनरेट हुआ है उसको कन्फिस्केट किया जाए, उसको अटैच किया जाए।
किसी भी कंट्री के जो फाइनेंशियल सिक्रेसी लॉज हैं, आप लोगों ने सुना होगा जिस तरह स्विस लॉज एट टाइम्स वो ऐसे रहें कि वो या बैंकर्स का भी जो फाइनेंशियल सिक्रेसी है कि आप अपने क्लाइंट का इंफॉर्मेशन अदर अथॉरिटीज को पहले नहीं देते, तो बहुत सी लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स भी आ गई हैं कि अब वो सिक्रेसी लॉज कोई भी कंट्री का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हिंडर करे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड किसी भी इन्वेस्टिगेशन को। बिजनेस रिलेशन जो उन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप ना किया जाए जहां पे सफिशिएंट स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। यानी जब एक कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाता है, ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, इसका मतलब है कि इस कंट्री के जो फ्रेमवर्क है, जो रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क है, वो इनसफिशिएंट है, वो एड्रेस नहीं कर रहे इस क्राइम को फुली। आपने नाम सुना होगा पनामा और इस तरह के केमन आइलैंड्स, वो कंट्रीज हैं या वो जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पे लॉस एएमएल रिलेटेड लॉस बड़े रिलैक्स्ड हैं और वो सफिशिएंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनली लॉन्ड्रर्स को, इलीगल मनी जनरेटर्स को, कि वो वहां पे जाके अपनी मनी को पार कर सके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि दे शैल बी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मेजर्स, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एएमएल पर्पसेस के लिए डेजिग्नेटेड फॉर नॉन फाइनेंशियल बिजनेस भी सिमिलर रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। सीडीडी मेजर्स नो एनोनिमस अकाउंट, पहले फाइनेंशियल सेक्टर में एनोनिमस अकाउंट्स भी ओपन होते थे, यानी मेरा नाम अगर जुनैद गौरी है तो ये जरूरी नहीं था कि मैं अपने नाम से जाके आईडी कार्ड पे अकाउंट खुलवाऊं। मेरा एक एनोनिमस अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है जिसको हम बेनामी अकाउंट यहाँ पे पाकिस्तान में करते हैं। तो अब ये मैंडेटरी है कि कोई भी आप एनोनिमस अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा इस ऑब्जेक्शन है, अगर आप देखें ना कि जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो कि गवर्नमेंट्स की तरफ से किसी भी सिवाय एक कंट्री के किसी भी और कंट्री ने अभी तक उसको लीगलाइज नहीं किया, उसकी बुनियादी रीजन यही है कि उसमें ट्रांजैक्शन ये जो एनोनिमस यानी आइडेंटिटी को छुपा के आप जो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आइडेंटिटी एक शख्स की क्लियर नहीं है, ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज नहीं करी आइडेंटिटी, तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से उसके ऊपर एक जो मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं आ पा रहा। अच्छा जी, उसके बाद सीडीडी रिकॉर्ड कीपिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं। क्रॉस बॉर्डर करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कि जब एक बैंक, पाकिस्तानी बैंक एक इंटरनेशनल किसी भी अफ्रीका के बैंक से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है फॉर इट्स ट्रेड बिजनेसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एलसीज के लिए, गारंटीज के लिए या किसी भी ट्रांजैक्शनल सर्विसेज के लिए, तो वो ये देखेगा कि ये जो बैंक है क्या वो बैंक भी एएमएल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। किसी भी पहले ऐसा भी हिस्टोरिकली होता रहा है कि बहुत से शेल बैंक, यानी शेल बैंक्स वो बैंक्स जो कि इन डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करते हैं, टेक्निकली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, तो ऐसे किसी भी बैंक के साथ कोई रिलेशनशिप पाकिस्तानी बैंक टेक्निकली नहीं रखे या ग्लोबली भी कोई बैंक शेल बैंक के साथ रिलेशनशिप ना रखे। तमाम की तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना एएमएल और सीएफटी प्रोग्राम बनाएंगे, स्पेशल इंटेंशन टू नॉन फेस टू फेस कस्टमर, जहाँ पे कस्टमर्स आपके साथ फेस टू फेस नहीं है उन रिलेशनशिप्स को स्पेशल फोकस दिया जाएगा। अपनी जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांचेस और ऑफिसेज हैं उनके ऊपर भी सेम रेगुलेटरी मेजर्स इंप्लीमेंट करेंगे। कंट्रीज अपने पास एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, ये स्टैब्लिश किया गया है ताकि वो मॉनिटर करे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और उसको ऑब्वियसली फिर इन्वेस्टिगेट करे। फाइलिंग ऑफ एसटीआर जो स्पीशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग ये उसका पार्ट है। प्रोवाइड लीगल इम्यूनिटीज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिस्क्लोजर, जहां एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव यानी एक एम्प्लॉई अगर कोई भी चीज एक गुड फेथ एक डिस्क्लोजर देता है तो उसको भी इम्यूनिटी हासिल होनी चाहिए। सिविल dissuasive civil administrative criminal sanctions for failing to comply with AML safety requirements नहीं, maintain all necessary records, ये different international cooperation mutual regulation assistance को बढ़ाया जाए। अच्छा जी, अगर आप ओवरऑल ग्लोबली देखें तो पूरी दुनिया के ही फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स को, एंटिटीज को ग्लोबली रेगुलेटर्स ने फाइनेंस यानी पेनलाइज किया है मनी लॉन्ड्रिंग के रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को ना फॉलो करने की। अगर आप मॉनेटरी पेनल्टी एनफोर्समेंट इम्पोज बाय ग्लोबल रेगुलेटर्स ऑन द वन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वायलेशन अगेंस्ट एएमएल केवाईसी एंड सैंक्शन, द past 10-year regulator across the North American, European, APAC regions have issued nearly
$26 billion in AML, KYC and sanction related fine. तकरीबन कुछ $26 बिलियन की पिछले 10 सालों में पेनल्टी बैंकिंग सेक्टर और अदरवाइज बैंकों को लगी है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 91% इसका टोटल शेयर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के बैंकों को लगी है। यूरोप में भी तकरीबन को 1.7 बिलियन की लगी। एशिया पैसिफिक जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो 609 मिलियन की डिफरेंट बैंकों को लगी है। HPL पाकिस्तान को 630 मिलियन की लगी थी, फिर बाद में सेटल हो गई, तकरीबन जाके कोई 225 बिलियन पे करना पड़ा। इसी तरह ये डिफरेंट चाइना के बैंक है, एबिन एमरो है, अरब नेशनल है, सिटी है, डिफरेंट बैंक्स है। यानी अगर आप दुनिया के एक कोने से स्टार्ट करें, ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट करें और कनाडा तक जाएं, तो शायद ही कोई ऐसा नोटेबल बैंक हो जिसको AML से रिलेटेड पेनल्टीज ना लगी हो। BNP पैराबस 8.9 बिलियन की इसको जी पेनल्टी लगी है। इससे सैंक्शंस रेट जो सूडान, ईरान या क्यूबा से रिलेटेड जो सैंक्शंस लगी हुई थी उससे उसकी वायोलेशन पे HSBC को तकरीबन 665 मिलियन की सिविल पेनल्टीज और 1.3 बिलियन की भी अदरवाइज पेनल्टी बोझ हुई थी। ING बैंक को 619 मिलियन की पेनल्टी हो चुकी है। क्रेडिट सुजुकी को 536 मिलियन की पेनल्टी हुई है। इस तरह लॉयड्स को 350 मिलियन की आप देखें पेनल्टी है। ये 298 बार्कलेस को भी हुई है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड को भी हुई है 227 मिलियन, इसके बाद भी हुई है। बल्कि ये डेंस्की बैंक है, ये भी यूरोपियन यूनियन का ब्रसल्स का बैंक है। इसका भी एक बहुत बड़ा ये केस है जिसपे डिफरेंट स्कैंडल्स इसके इन्वॉल्व, मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड। आपको याद होगा कि हमारा एक बैंक था BCCI, जिसका भी बुनियादी तौर पे उस पर जो इल्जाम था वो ये कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। आई मीन डिस्पाइट वो एक तो पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 10 बैंक्स में आ गया था, ग्लोबली बहुत जबरदस्त बैंक था। बट नेवरदलेस बहुत सी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या बहुत से इल्जाम में से एक इल्जाम उस पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का। कॉमनवेल्थ बैंक को भी तकरीबन एक साल में 53,700 ब्रीचेस मनी लॉन्ड्रिंग के आइडेंटिफाई किए हैं ऑस्ट्रैक ने, जो कि ऑस्ट्रेलियन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर है, जिस तरह हमारा FMU है। ऑस्ट्रैक ने अरेस्ट किया है कि सीरियसली सिस्टमिकली ब्रीच्ड कंप्लायंस ऑफ AML लॉज यूजिंग द टेक्निक कुकू स्मर्फिंग, ये टेक्निक होती है। FINRA फाइन्स मॉर्गन स्टैनले 10 मिलियन फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस, ये भी इसको फाइन हुआ है। फिर इसके अलावा भी डिफरेंट एंटिटीज को भी फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क ने भी पेनलाइज किया हुआ। तो अगर बुनियादी तौर पे देखें तो ये एक सीरियसली वर्ल्ड वाइड इस ऑफेंस को, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऑफेंस है, इसको बहुत सीरियसली वर्ल्ड वाइड लिया गया है। कीपिंग इन व्यू कि इसका साइज बहुत बड़ा है, जो इससे नुकसान हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को, वो तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $2 ट्रिलियन प्लस का हो। टेररिज्म फाइनेंसिंग को मैं थोड़ा सा ब्रीफ बस करता चलता हूँ कि टेररिज्म फाइनेंसिंग वो तमाम की तमाम फंड्स जो कि यूटिलाइज होती हैं टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए, इसको हम टेररिज्म फाइनेंसिंग कहेंगे। Is the unlawful use, threatened use of force or violence against individuals or property to intimidate or coerce government or societies, often to achieve political, religious, ideological objectives। कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जिसके लिए आप टेररिज्म का सहारा लेते हैं। ये इसके देखें, मनी लॉन्ड्रिंग में और टेररिज्म फाइनेंसिंग में दो बुनियादी एक चीज है, वो बस नोट कीजिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग हमेशा उसकी बैक पे एक क्राइम जरूर होगा, यानी एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा, जिसको हमने कहा था ना प्रेडिकेट ऑफेंस होगा, वो होगा तो लॉन्ड्रिंग होगी। टेररिज्म फाइनेंसिंग में लेजिटिमेट फंड, यानी आप और मैं जो अगर चंदा भी देते हैं ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसी मदरसे को, तो हो सकता है वो जो फंड है हमारा लीगली जनरेटेड मनी है वो भी इसमें यूज हो सके। तो इसके सोर्सेज दोनों हैं। टेररिज्म फाइनेंसिंग लेजिटिमेट मीन्स से भी जनरेट हो सकता है और अनलॉफुल मीन्स से भी जनरेट हो सकता है। तो टेररिज्म फाइनेंसिंग के दोनों सोर्सेज हैं, यानी इलीगल सोर्सेज भी हो सकते हैं और अनलॉफुल सोर्सेज भी हो सकते हैं। डिफरेंट मोटिव्स होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के। पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते हैं, सोसाइटल चेंज लाना चाहते हैं, रिलीजियस चेंज लाना चाहते हैं, कोई रिवेंज है, कोई सिंबलिज्म है, तो कोई भी रीजन होती है। टेररिस्ट का कोई भी रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से वो लोगों को जानी माली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। टेररिस्ट को किस लिए पैसे चाहिए? रिक्रूट करने। जैसे मैंने कहा था कि दो बुनियादी चीजें तो हर हालत में होंगी, एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक ह्यूमन रिसोर्सेज। टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए आपको ये दोनों एलिमेंट लाजमी चाहिए।
तो आपको रिक्रूट करना है, सस्टेन करना है, जब ह्यूमन रिसोर्स को, तो आपको फंड चाहिए उसके लिए, आपको इन्फ्लुएंस भी करना है तो भी पैसा चाहिए, आपको सपोर्ट बेस अपनी डेवलप करनी है तो भी पैसा चाहिए, और फिर उसको अगर टेररिस्ट एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है तो यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग तक जो तमाम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उस पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन और नीड मैंडेटरी है टेररिज्म फाइनेंसिंग में भी। इलीगल एक्टिविटी से भी, जिस ड्रग ट्रैफिकिंग है, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन से भी टेररिज्म फंड्स जनरेट होते हैं। वेल्दी स्पॉन्सर्स भी हैं जो कि टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। वेल्दी इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, उनमें कंट्रीज भी हो सकती हैं, जैसे डिफरेंट, आप इंडिया की एग्जांपल ले लें कि इंडिया अगर एक डिफरेंट, पाकिस्तान के लिए बहुत सी जगह पे टेररिज्म क्रिएट करता है, तो ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं, एंटिटीज भी हो सकती हैं, और कंट्रीज भी इवन टेररिज्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं। चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि लेजिटिमेट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फंड रेज करते हैं, बट अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं से वो फंड्स टेररिज्म फाइनेंसिंग पे यूज होता है। कमर्शियल एंटरप्राइजेस भी आप डेवलप करते हैं इन द गार्ब ऑफ कमर्शियल एंटरप्राइजेस, यानी apparently they are holding a commercial enterprise and they are using the profits of those enterprise towards the terrorism. State sponsored, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी है। तो ये बुनियादी फर्क है कि मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ इलीगल तरीके से ही जो पैसा जनरेट होता है उसको लीगलाइज करने की तरफ हम जाते हैं, यानी जो क्रिमिनल होता है वो इलीगल फंड को इस तरह से मूव करता है कि वो लीगली जनरेटेड फंड्स नजर आए, जबकि टेररिज्म में वो दोनों सोर्सेज से उसका पर्पस टेररिज्म है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के देखें तो हम तीन बुनियादी इसके यानी स्टेजेस बयान करते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क में ही बुनियादी तौर पे तीन स्टेजेस बताई थी: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट के जिस वक्त फंड्स को प्लेस किया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में, यानी बैंक में अगर पैसा जब जमा करा देता है एक एक मनी लॉन्ड्रर, तो ये उसकी फर्स्ट स्टेज होती है। प्लेसमेंट के बाद वो इस पैसे को डिफरेंट ट्रांजैक्शन से, लेयरिंग लेयरिंग ये है कि वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन से उसको अक्रॉस दी फाइनेंशियल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करता है फंड को, या बाहर भेज देता है ताकि वो एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम उसको दोबारा वापस मंगाए और उसको फिर लेजिटिमेट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे। तो थर्ड स्टेज जो इंटीग्रेशन है वो ये है कि जिसपे थर्ड स्टेज पे वो बाहर जो उसने पैसा एक दफा भेज दिया था, अब उसको वो लीगल एंटिटीज का शेप दे के वापस पाकिस्तान में मंगाएगा और उसको फिर लीगल बिजनेसेस में या रियल एस्टेट में या एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये टेररिज्म फाइनेंसिंग है, इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कंट्रीज में चेंज किए जाते हैं पैसे के जोर पे, और वो पैसा इलीगल तरीके से जनरेट होता है। टेररिज्म की एक्टिविटीज को बढ़ाया जाता है ताकि अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जा सके, ताकि अपनी मर्जी की गवर्नमेंट ला सके, जिससे हम अपने तौर पे काम करवा सकें। तो ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स और कंट्रीज भी इवन इस सारे के सारे मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। चेंजेस इन मनी डिमांड, ऑब्वियसली जब आपके यहाँ इलीगल वेल्थ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस, जिस तरह हम कहते हैं प्राइसेस भी, जब मुल्क में जब इलीगल मनी ज्यादा हो जाएगी तो जो जेन्युइन बिजनेसेस हैं वो मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब आपके मुल्क में, किसी भी कंट्री में जब पैसा कमाना इलीगल तरीके से आसान हो जाएगा तो जेन्युइन एंटरप्राइज की तरफ लोग नहीं आएंगे। यानी व्हाई शुड वन इन्वेस्ट in to make a manufacturing unit in Pakistan, कि वो पहले उस जमीन खरीदेगा, फिर उसकी अप्रूवल्स लेगा, फिर मशीनरी इंस्टॉल करेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर उसकी मार्केटिंग करेगा, फिर उसको सेल करेगा, एक प्रोडक्शन, पहले तो प्रोडक्शन से गुजारेगा, फिर 100 तरह के रेगुलेटरी और कंप्लायंस मैकेनिज्म्स को फॉलो करेगा, फिर जाके कहीं प्रॉफिट बनाएगा। और एज अगेंस्ट दिस, अगर लीगल इलीगल मनी कमाना आसान है तो इस तरह की कोई एंटरप्राइज डेवलप नहीं हो पाएगी, सबके सब लोग इलीगल और इलीगल तरीके से जनरेटेड मनी की तरफ जाएंगे। यानी क्राइम को प्रोमोट करेगी ऐसी कोई भी इकोनॉमी जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग पे चेक नहीं होगा।
इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज को भी इफेक्ट करेगा, एक्सचेंज रेट्स को भी। ऑब्वियसली जिस तरह आप अगर आप पाकिस्तान का भी एग्जांपल ले लें तो जो भी ये वोलेटिलिटी है कैपिटल फ्लोज की, एक्सचेंज रेट की सब इलीगली जनरेटेड मनी की वजह से, अब वो चंद हैंड्स में हो या मेजॉरिटी हैंड्स में हो। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑब्वियसली कि जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो वो कंट्री के ओवरऑल सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करेंगे, एथिकल स्टैंडर्ड्स को डिस्टर्ब करेंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को ओवरऑल डिस्टर्ब करेंगे। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैन इन्फिल्ट्रेट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ऑनरशिप भी मनी लॉन्डर्स के पास जा सकती है। They can acquire the control of large sectors of the economy through investment, bribes, public officials को और गवर्नमेंट्स को। तो यानी इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो एक पॉइंट इन टाइम पे ऐसा होता है जैसा कि जिसका रेप्लिका अगर आप पाकिस्तान को देखें किसी हद तक तो आपको नजर भी आएगा कि क्रिमिनल्स आपकी लेजिटिमेट एंटरप्राइज को भी ऑन करते हैं और फिर पब्लिक ऑफिस को भी होल्ड करते हैं, पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करते हैं और पार्लियामेंट से भी लेजिस्लेशन वो बनाते हैं जो उनको सूट करती हो। ठीक है, तो इस तरह एक विशियस सर्कल डेवलप होता है और जो मुल्क के जो सोसाइटी है वो किसी हर हालत में उसको एक इकोनॉमिक मलेस का ही शिकार रहती है, यानी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली वो कंट्री डेवलप नहीं हो पाता। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जी थोड़ी सी मैं आपको डिस्कस करता है जो रिस्क बेस्ड अप्रोच, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए फैटफ की जो रिस्क बेस्ड अप्रोच है वो जाती है कि जी हाई रिस्क जहाँ कहीं भी रिस्क मोर देन दी नॉर्मल रिस्क होगा वहाँ पे एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, यहाँ पे हायर रिस्क जहाँ पे होगा वहाँ पे आप एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस मेजर्स लेंगे। एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस मेजर्स में क्या है जी, कस्टमर के रिस्क फैक्टर के, कस्टमर आपका कितना रिस्की एंटिटी है या इंडिविजुअल है, उसकी इनकम जो है वो कहाँ से जनरेट हो, किन ज्योग्राफिकल एरियाज में वो ऑपरेट करता है, उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या है, ट्रांजेक्शन्स क्या है, डिलीवरी चैनल्स क्या है। तो ब्रॉडली ये आइडेंटिटी, कस्टमर की आइडेंटिटी, उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप, नेचर ऑफ उसके बिजनेस प्रोफाइल, क्लाइंट्स ऑफ कस्टमर, उनकी लोकेशन, उसके कस्टमर्स की भी लोकेशन और उनके बिजनेसेस की जिनसे वो डील कर रहा है उनका क्या वेयर अबाउट्स है। तो लो रिस्क में आप बैंक्स के लिए है कि वो सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि सिंपली अगर एक जॉब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो बैंक के पास अगर अकाउंट ओपन करने आएगा तो सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस होगी कि उसका आप वेयर अबाउट चेक करेंगे, उसकी इनकम और सैलरीज उससे डिटरमिन कर लेंगे। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन आता है जो कि मल्टीपल कंट्रीज में जिसका इन्वेस्टमेंट्स हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए एक एनहांस रेलिवेंस भी होगी। इस तरह इसके और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं, उसको भी हम देखेंगे बाद में। रिस्क वेरिएबल्स कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेक इनटू अकाउंट रिस्क वेरिएबल्स रिलेटेड टू दो रिस्क कैटेगरीज। ये क्या वेरिएबल्स हैं कि पर्पस जो अकाउंट आपके पास ओपन किया जा रहा है, अच्छा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है अब, और अकाउंटेंट जो कि किसी क्लाइंट को ऑन बोर्ड कर रहा है उसके लिए भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है कि वो जो पर्पस है उस ट्रांजेक्शन का, उस रिलेशनशिप का वो क्या है, क्या साइज ऑफ एसेट्स क्या है, आप किस तरह की एक्सपर्ट एडवाइस करने जा रहे हैं, किस तरह की फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करने जा रही है बैंक से पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि लेवल ऑफ एसेट्स जो कि कस्टमर डिपॉजिट कराएगा या साइज ऑफ ट्रांजेक्शंस जो आप हैंडल करने जा रहे हैं वो क्या है, द रेगुलरिटी और ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। क्या अब एक टाइम टेस्टेड कस्टमर है जो कि 20 साल से आपके पास डील कर रहा है उसका ऑब्वियसली रिस्क कम होगा, जो नया एक कस्टमर है उसके बारे में भी आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली उस लेवल पर नहीं पहुंचा होगा तो आपको उसकी एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस करनी होगी। कस्टमर के फैक्टर्स में कि बिजनेस रिलेशनशिप अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में तो नहीं कंडक्ट किया, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट अनएक्सपेक्टेड geographical distance between the financial institution and the customer। कस्टमर बिजनेस करता है चारसदा में और अकाउंट मेंटेन करता है इस्लामाबाद में, ये एक सस्पिशियस एलिमेंट है जो आप रिस्क फैक्टर में अकाउंट इनकॉर्पोरेट करना होगा रिस्क रेटिंग में। नॉन रेजिडेंट कस्टमर्स यानी जो पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं है, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनका ये हाई रिस्क पोज करते हैं एज अगेंस्ट दोस्त जो कि रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान है। लीगल पर्सनल अरेंजमेंट जहाँ पे आपको बेनिफिशियल ऑनरशिप
क्लियर नहीं है कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप तक आपने पहुंचना है थ्रू लीगल अरेंजमेंट, उसमें इतनी लेयरिंग कर दी जाती है कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह की और भी जितनी स्पेशल पर्पस व्हीकल या पर्सनल एसेट होल्डिंग व्हीकल्स हैं उनको भी उनको अनलेयर करना भी बड़ा जरूरी है। कंपनीज जहाँ पे नॉमिनी शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी बड़ा रिस्क उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। बिजनेस जहाँ पे कैश इंटेंसिव बिजनेस है, अब आप देखेंगे अगर एक्सचेंज कंपनीज की हम बात करें तो वो कैश इंटेंसिव बिजनेस, इसलिए उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और ऑनरशिप स्ट्रक्चर जो कंपनी का है वो भी एक्सेसिवली कॉम्प्लेक्स अगर होता है वो भी एक रिस्क होता है। जो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं जनरली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं, यानी उसमें मनी चेंजेस भी आ जाते हैं, और ट्रैवल एजेंसीज हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स ये हाई रिस्क कस्टमर्स में आएंगे, प्रोफेशनल कंसल्टिंग फर्म्स हैं, एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसिंग, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर्स हैं, कैश इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, गैम्बलिंग कैसीनोज ये वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफशोर कॉर्पोरेशंस हैं, बैंक्स जो सेक्रेसी हेवंस में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओज या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं चैरिटीज, कैसीनो, रियल एस्टेट डीलर्स, लॉयर्स, ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर, कम ज्योग्राफी और कंट्री रिस्क फैक्टर्स, यानी कंट्रीज जो हमने बात की कि जो हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस हैं और जहाँ पे फैटफ ने अगर उनकी कोई रेटिंग की हुई है सपोज ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में, तो वो ऑब्वियसली जब एक ऐसा कंट्री जब उनसे ट्रांजेक्शन करने जाएगा तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस एक्सरसाइज करेगा। प्राइवेट बैंकिंग चैनल्स, एनोनिमस ट्रांजैक्शंस, नॉन फेस टू फेस बिजनेस पेमेंट रिसीव फ्रॉम अननोन और अनएसोसिएटेड थर्ड पार्टीज में, जहाँ पे इस तरह की ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगी फाइनेंशियल सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ट्रांजैक्शंस भी रिस्क हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस में आएंगे। प्राइवेट बैंकिंग रिलेशनशिप्स, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग और एजेंसी रिलेशनशिप्स हैं, बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट से इस टाइप की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं या वायर ट्रांसफर्स हैं, ये भी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन में आती हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस जहाँ कहीं भी होंगी ऑब्वियसली वहाँ पे एक एडेड रिस्क जो बॉर्डर का रिस्क है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और लास्टली इसको थोड़ा सा हम पाकिस्तान का करंट सिनेरियो, जो कि आपने देखा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ये वो लिस्ट है जिसमें वो कंट्रीज शामिल किए गए हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली एएमएल सीएफटी की डेफिशिएंसीज होती हैं, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते जो एफएटीएफ के स्टैंडर्ड्स हैं उनको। 26 सेक्शन प्लान हमने अभी बात की थी, ये पाकिस्तान को दिया गया और उसके बाद 15 मंथ्स का प्लान दिया, फिर उसके बाद बहुत से प्लान देते गए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसने काफ़ी इस पर कंप्लाई कर लिया है। ये सारे के सारे एक्शन प्लान, यानी आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2020 में बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क डेवलप किया गया, इसमें एएमएल एक्ट को रीडू किया गया, ये नाक्टा का एक्ट है उसको, और भी बहुत सी यानी जितने भी काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्ट से रिलेटेड हो या एएमएल रिलेटेड तमाम की तमाम लॉस को लास्ट ईयर कंप्लाई किया गया टुवर्ड्स दी स्टैंडर्ड्स जो कि फैटफ के स्टैंडर्ड्स हैं। ये डिफरेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो अगर अब इसमें हम मेरा ख्याल है क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, अगर मैं सुन सकूं किसी को। APFA, how can I claim CPD hours? Ali, can we open the house for questions? ये सर इसमें है कि पार्टिसिपेंट्स अपने हैंड रेस करते हैं, वन बाय वन हम इनके जो है माइक अनम्यूट करते हैं। हाँ कर लें, कोई पार्टिसिपेंट्स काइंडली अपने हैंड रेस कर दें ताकि आपको वन बाय वन जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ले सकें। थैंक यू। कैन वी टाइप इन चैट, अगर आप चाहे आप टाइप भी कर सकते हैं, अगर कोई किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है आपकी तो आप टाइप कर लें। पार्टिसिपेंट्स मौजूद भी हैं यहाँ पे या नहीं, सवाल तो ये, क्योंकि मुझे चंद जी सर, लोग नजर आ पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, हैं। 54 पार्टिसिपेंट्स अभी अवेलेबल हैं यहाँ पे। अच्छा,
तो ये असल में let me share once again the purpose of this session was to give an overall rather an overview of the global regime as well as कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की स्टेज पे है। एक जस्ट आपको एक फील कि इसका पर्पस एक ओवरव्यू देना था आपको कि ताकि आप लोग इस एक बाय बीइंग नाउ अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी which is a full-fledged body now, you are subject of a greater compliance in the days to come. You will be a subject of greater compliance in the days to come. तो लेट मी शेयर मैं इस वक्त एज ए कन्वीनर ऑफ द इस्लामाबाद ब्रांच कमेटी हूँ। अदरवाइज मैंने भी पीएफए की मेंबरशिप 2 साल पहले ली और इसीलिए ली कि मैं भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकूँ। पिपफा जो एक हमारी बॉडी है जो कि 3 मेन बॉडियों में अब ये एक बॉडी माशाल्लाह हो गई है। तो बाय बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम एन इंटरनेशनल बॉडी, इट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी कि मैं पाकिस्तान की भी किसी बॉडी की मेंबरशिप लूँ। तो ये मेरे साथ और भी बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने रिसेंटली इसकी मेंबरशिप ली है और अभी भी हम इंशाल्लाह बहुत से लोगों को कन्विंस करें कि वो पिपफा की तरफ अब आएँ। क्योंकि पिपफा अब एक फुल फ्लेज्ड बॉडी है, अब उसका वो पार्शियल वाला स्टेटस नहीं रहा। अभी बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता। तो इस तरह के सेशंस इंशाल्लाह हम फर्दर भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। रादर आई वुड लाइक कि हम इसको कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ आने वाले दिनों में कि फेस टू फेस सेशन हो ताकि ज़्यादा इंटरेक्टिव हो और हम पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट in coordination with the PIPFA head office as well as with the different branch committees. उसमें चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा वो देख लीजिए। फेस टू फेस सेशंस को सर चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो जरा देख लीजिए। FMU under एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सिंपल सा है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट का बुनियादी तौर पे पर्पस जो है तमाम के तमाम फाइनेंशियल सेक्टर से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग लेना है, उसको मॉनिटर करना है। यानी दिस इज अ मॉनिटरिंग यूनिट। दुनिया में जिस तरह आपने देखा ना, हमने बात की थी, ऑस्ट्रैक है, ऑस्ट्रेलियन ट्रांजैक्शन एनालिसिस सेंटर है। तो वो भी उसका पर्पस है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो उसको ऑब्जर्व करता है और उसमें से देखता है कि कोई इलीगल पर्पसेस के लिए तो वो ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो बैंक्स जो अपनी करेंसी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स भेजते हैं उसको एनालाइज करता है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। लाइकवाइज जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होते हैं उसको भी एनालाइज करता है और फिर उसके बाद रिस्पेक्टिव जो एजेंसीज हैं जो कि लेजिस्लेटिव एजेंसीज हैं उनको फिर फॉरवर्ड करता है फॉर ऑब्वियसली जो हमने बात की थी इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और एजुडिकेशन। फिर एक प्रॉपर उसका एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। अगर वो सस्पिशियस एक्टिविटी या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वारंट करती है टू गो फर्दर विद दिस। सीटीआर और एसटीआर दोनों सेम नहीं है। सीटीआर स्टैंड्स फॉर कैश करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, यानी जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम कहते हैं सीटीआर, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग। ये बैंक्स में जब करेंसी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम बोलते हैं करेंसी सीटीआर। एसटीआर होती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के जहां पे बैंक की एनालिसिस टीम जो कि ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग करती है वो ये डिटरमिन करती है कि ये ट्रांजैक्शन जो हुई है इसका पर्पस कोई इलीगल पर्पस है। वो इस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को रिपोर्ट करता है। एसटीआर एग्जैक्ट मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई, जी एग्जैक्ट मैकेनिज्म एसटीआर जो है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग होती है। यानी जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को एक ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग यूनिट एक बैंक का उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको रिपोर्ट करता है एफएमयू को। एफएमयू फिर उस पर अपना एनालिसिस करती है और वो डिटरमिन करती है क्या दिस वेरी ट्रांजैक्शन वारंट्स फर्दर एक्शन, आई.ई. दैट इज टू टेक इट फर्दर टूवर्ड्स द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है, जैसे हमने बात की थी कि क्या इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्या ये जो ट्रांजैक्शन है ये वारंट करती है इन्वेस्टिगेशन को। So how do you execute assignment in banking sector? कि बैंकिंग सेक्टर में ये है कि तमाम की तमाम बैंक्स अब इस वक्त आप से मैं डिस्कस करता चलूँ कि स्टेट बैंक के AML CFT CTF रेगुलेशंस हैं
जिसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्पेसिफिक टू द बैंकिंग सेक्टर थे, इसलिए हमने भी जस्ट एक ओवरऑल व्यू दिया है इस फाइनेंस सेक्टर का। इस AML से रिलेटेड ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशंस हैं जो तमाम के तमाम बैंकिंग सेक्टर, जो वो तमाम एंटिटीज जिनको स्टेट बैंक रेगुलेट करता है, यानी बैंक्स प्लस माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, वो उनके लिए रेगुलेशंस हैं। उन रेगुलेशंस के मुताबिक बैंक्स को अपनी कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स। उसके बाद उनकी एक ऑन गोइंग ड्यू डिलिजेंस है कि गाहे बगाहे ऑन टाइमली बेसिस उसको रिव्यू भी करता रहे, जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने उनको दी है, और उसकी भी ड्यू डिलिजेंस करता रहे। और लाइकवाइज बैंक के साथ ही ये सारी की सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है बैंक के लिए, कि बैंक ने क्या क्या सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने हैं, बैंक ने क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, बैंक ने किस क्वालिटी के स्टाफ से किस तरह के कंप्लायंस मेजर्स एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो ये तमाम की तमाम जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रेगुलेशन है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस मौजूद है। Basel 3 framework contains AML guidance. Basel 3 framework AML guidance नहीं, Basel का अपना जो मैंने बताया ना इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस है, वो AML या मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड पे उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल पैप पैप की जी इंटरनेशनल जो बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर में पैप की लिस्ट्स मौजूद हैं, यानी वो लिस्ट आपको सब्सक्राइब करनी पड़ती है। यू हैव टू परचेज द लिस्ट एंड यू हैव टू सर्च थ्रू दैट लिस्ट। यू हैव टू इंटीग्रेट योर फाइनेंशियल सिस्टम्स, जो कि आपके अकाउंटिंग और बैंकिंग सिस्टम्स हैं, और वो सिस्टम आपका एक सर्टेन पर्सन को बाय नेम और बाय हिज आइडेंटिटी नंबर और बाय हिज नेशनैलिटी उसको आइडेंटिफाई करता है। तो वो पैप की आइडेंटिफिकेशन जो लोकल पैप है उसकी भी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, लिस्ट प्रोवाइडर उसके वो चार्ज करते हैं, सब्सक्राइब करना पड़ता है आपको। और इंटरनेशनल पैप की भी जो लिस्ट है वो इंटरनेशनली अवेलेबल है, और उसकी हेफ्टी सम ऑफ मनी इन डॉलर्स आपको पे करनी पड़ती है उनको, जो कि वो लिस्ट को मैनेज और मेंटेन करते हैं। एनी एक्ट इन पाकिस्तान, एनी एक्ट से मुराद क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में आया था, जो कि स्पेसिफिकली मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड ऑफेंस को कवर करता है। इसके बाद उसकी अमेंडमेंट्स आती रही हैं, और लास्ट ईयर भी उसकी अमेंडमेंट आई है जो कि खासी बड़ी अमेंडमेंट थी। तो यानी जो बुनियादी एक्ट AML एक्ट है वो 2010 में आया था। और क्या सवाल है जी? सर ओके, आसिफ नवाज साहब का क्वेश्चन हैंड रेज किया है। मेरा ख्याल है सबके सवाल जवाब हो गए। प्लीज शेयर। क्रिप्टो करेंसी जनरेशन एक्सेप्ट, ये क्रिप्टो करेंसीज पे हम इंशाल्लाह एक इंडिपेंडेंट सेशन करेंगे, क्रिप्टो करेंसी पर, क्रिप्टो एक्सचेंज पे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में प्लान करेंगे हम डेफिनेटली। और आप जरूर आए, क्योंकि आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू कि जनाब इस सेशंस में पार्टिसिपेट करें। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको है तो CPD है, दूसरा ये कि ये सबसे ज्यादा फ्री आइटम है और फ्री की लर्निंग है। IT कंट्रोल फॉर यस आइडेंटिटी, IT के कंट्रोल सिस्टम्स में एस्टेब्लिश किए जाते हैं बैंक्स में। अगर आप देखें तो बहुत हैवी ड्यूटी इन द सेंस कि वो बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम्स हैं जो कि इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं, जो कि फिर आपके बैंकिंग सिस्टम्स, मतलब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के भी सिस्टम्स हैं जो कि जिसपे सिस्टम्स कंट्रोल उसमें बिल्ट इन किए हुए। FATF is rule based principle. FATF is principle based जी, सिंपली। यानी FATF में किसी भी किस्म का आपको कोई वो डायरेक्ट नहीं है कि जी आपने ये इस तरह इंप्लीमेंट किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टेक्निकली वॉलंटरी कोड है, तमाम वॉलंटरी रिकमेंडेशन है। जिस तरह आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है ना, ये उसके अगेंस्ट ये रिकमेंडेशन है। लेकिन रिकमेंडेशन अब वो पोजीशन एक्वायर कर गया है ग्लोबली कि वो स्टैंडर्ड का दर्जा टेक्निकली एक्वायर कर गया कि अब जितने भी डेवलप कंट्रीज है वो किसी डेवलपिंग कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे अगर वो कंप्लाई नहीं करेगा FATF के रिकमेंडेशन को। तो इन बिल्ट अब वो इसका स्टैंडर्ड का ही दर्जा तकरीबन हो गया कि आपने उसको कंप्लाई करना है। जी आसिफ नवाज साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी जुनैद साहब कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन आया है कि जिस तरह रिपोर्टिंग इधर बनाई गई है, लाइक जिस तरह जो DNFEPs हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं थ्रू डेजिग्नेटेड प्रोफेशन बिजनेस एंड प्रोफेशन, FBR में उनका जो एक पोर्टल बना दिया गया, वहां से वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस
और एसपीआर जो है वो रिपोर्ट करेंगे। अगर आप अकाउंटेंट्स है उनकी रेगुलेटरी अगर आप बॉडी। टाइप करते हैं तो ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि आपकी आवाज तो कट रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जस्ट अगेन बोलता हूँ। जी सर, आपको आवाज आ रही है ठीक? मुझे आवाज नहीं आई आपकी, बिल्कुल आवाज कटती रही है आपकी, इसलिए सर मैं कुछ सुन नहीं पाया। तो अगर सर आप अब लिखते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। सर अब आवाज आ रही है ठीक? मेरा ख्याल है सवाल काफी हो गए हैं। आई थिंक वी शैल कंक्लूड नाउ। अली मैं चाहता कि सवाल तकरीबन अब फर्दर तो कोई नहीं मुझे नीचे नजर आ रहा, और उन साहब की मुझे आवाज नहीं मौसूल हुई, तो जवाब नहीं दे आसिफ पाऊंगा साहब, उनके आप पास। माइक पे हैं, जरा काइंडली रिपीट कर रहे हैं और क्वेश्चन। अगर जी जी, फर्दर अब क्वेश्चन है तो आवाज आ हम रही इसको है सर कंक्लूड आपको? करते हैं सेशन को आज के। जुनेद सर? हाँ जुनेद साहब, आप सुन रहे हैं? अच्छा आसिफ साहब, आप ऐसा कीजिएगा, आप क्वेश्चन, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप सर से अलग से कांटेक्ट कर लीजिएगा सर। चले, थैंक यू सो मच। तो आज के इसको जी कंक्लूड करते हैं सेशन को, ठीक और है जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन जैसे ही होगा इंशाल्लाह आपको उसमें हम ब्रीफ कर देंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, थैंक यू ऑल सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके स्लाइड्स वगैरह की जरूरत है तो काइंडली जिस ईमेल से आपको मीटिंग आईडी आया था उसी ईमेल पर अपना रिप्लाई कर दें, ताकि मैं आपको स्लाइड्स वगैरह उसी पे ईमेल कर दूँ। थैंक यू सो मच।